आइज़िया पढ़ेंगे हम। आइज़िया चैप्टर 38, 39 किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। 1 ईयर बाइबल रीडिंग का ये भाग है। आइज़िया 38 चैप्टर, 39 चैप्टर हम पहले वर्ष से पढ़ेंगे। 38 चैप्टर, फिर बाद में हम हिंदी में पढ़ेंगे यही अध्यायों को BSI बाइबल में से। अब हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। आइज़िया चैप्टर 38। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, ख़त्म कर देते हैं बात को खुदा। अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं, व्यर्थ है ये बाइबल रीडिंग। काम कर मेरे पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ हमें ये वचन समझने में इस्तेमाल होने दे। आपकी सामर्थ हमें ये वचन समझने में इस्तेमाल होने दे। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Isaiah chapter 38. Hezekiah's life lengthened, his thanksgiving. First verse से पढ़ेंगे। In those days was Hezekiah sick unto death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him, and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then Hezekiah turned his face toward the wall, and prayed unto the Lord, and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth, and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Then came the word of the Lord of Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city. And this shall be a sign unto thee from the Lord, that the Lord will do this thing that he hath spoken. Behold, I will bring again the shadow of the degrees which is gone down in the sun dial of Ahaz 10 degrees backward. So the sun returned 10 degrees, by which degrees it was gone down. The writing of Ezekiah king of Judah, when he had been sick and was recovered of his sickness, I said, in the cutting of my days, I shall go to the gates of the grave. I am deprived of the residue of my years. I said, I shall not see the Lord, even the Lord in the land of the living. I shall behold man no more with the inhabitants of the world. Mine age is departed, and is removed from me as a shepherd's tent. I have cut off like a weaver my life. He will cut me off with pinning sickness. From day even to night wilt thou make an end of me. I reckoned till morning that as a lion, so will he break all my bones. From day even to night wilt thou make an end of me. Like a crane or a swallow, so did I chatter. I did mourn as a dove. Mine eyes fail with looking upward. O Lord, I am oppressed. Undertake for me. What shall I say? He hath both spoken unto me, and himself hath done it. I shall go softly all my years in the bitterness of my soul. O Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my spirit. So wilt thou recover me and make me to live? Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption. For thou hast cast all my sins behind thy back. For the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. They that go down into the pit cannot hope for the truth. The living he shall praise thee, as I do this day. The father to the children shall make known thy truth. The Lord was ready to save me. Therefore we will sing my songs to the stringed instruments all the days of our life.
in the house of the Lord. For Isaiah had said, "Let them take a lump of figs and lay it for a plaster upon the boil, and he shall recover." Hezekiah also had said, "What is the sign that I shall go up to the house of the Lord?" Chapter 39. Merodach Baladan, sending to visit Hezekiah, had notice of his treasures. Isaiah foretells the Babylonian captivity. First verse से पढ़ेंगे. At that time, Merodach Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah, for he had heard that he had been sick and was recovered. And Hezekiah was glad of them, and shewed them the house of his precious things, the silver and the gold, and the spices, and the precious ointment, and all the house of his armor, and all that was found in his treasures. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah shewed them not. Then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah, and said unto him, What said this man? And from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come far from a far country unto me, even from Babylon. Then said he, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All that is in mine house have they seen. There is nothing among my treasures that I have not shewed them. देखो ये वचन को ध्यान दीजिए, ठीक है. अब हेजेकिया को परमेश्वर ने बचा तो लिया, लेकिन उसकी पूछताछ करने के लिए जो लोग आए हुए थे, उनको इस बादशाह ने जितना कुछ भी उसके पावर का था, जितना कुछ भी उसके प्राइवेट बातें थी, जितना उसके अंदर का जो मूल जीवन का तत्व था, वो सब कुछ उसने उनके सामने प्रकट करके दे दिया. ओके, ये एक रीज़न था कि परमेश्वर ने बोल दिया था कि अब इस्राएल बंधुआई में जाएगी. ओके, तो उस प्रकार का बंधुआई जो आप देखते हैं कि दानियल जो है वो कैद कर लिया गया था और उसको ले लिया गया था. नबूकदनेस्सर उसके ऊपर बादशाह राज्य कर रहा था और वो उन लोगों को गुलामी में लगा चुका था. ओके, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ठीक है, आपने उनकी बातों को सुना है. लेकिन वो बंधुआई में गए, लेकिन गए कहाँ से? यहाँ से गए वो, ठीक है. यहाँ पे ये बादशाह ने गलती कर दी और इसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तुम्हारे लोग बंधुआई में जाएंगे, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ेंगे तो आप देख लेना इस बात को, ठीक है. Then said he, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All that is in mine house have they seen. There is nothing among my treasures that I have not shewed them. Then said Isaiah to Hezekiah, Hear the word of the Lord of hosts. Behold, the days come. ये 6 वचन में बंधुआई के बारे में बता दिया. जो आप पढ़ते, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, इनको बंधुआई बनाकर गुलामी में ले लिया गया था, ठीक है. Behold, the days come that all that is in thine house and that which thy fathers have laid up in store until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. इसके लिए देखो हम जानते हैं कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, इनका जो प्राइवेट पार्ट्स होता है वो निकाल दिया गया था. ओके, उनको यूनुक्स बना दिया गया था ताकि वो बेबीलोन के बादशाह की पूरी तरह से, उसके राजमहल की पूरी तरह से वो चौकसी से अपनी कामगिरी को हुनर के साथ कर पाए, उनका ध्यान और कहीं भटकने ना पाए. ओके, तो इसके लिए हमको पता है कि वो लोग किस प्रकार के गुलामी में, उनको किस प्रकार की अवस्था में रखा गया था. ओके, ये वचन बताता है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने अपने विश्वास के
आधार से फिर वहाँ पर जीवन जिया। बंधुआई में गए कैसे वो लोग इसराइली थे तो भी, क्योंकि यहाँ पे गलती किया था हिजकिय्याह बादशाह ने 4 वचन में। तो हम हमेशा ध्यान रखिए, हम बंधुआई में तभी जाते हैं जब हम कुछ तो ऐसा शत्रु के हाथों में दे देते हैं जो हम नहीं जानते हैं कि शत्रु हमसे वो लेने के लिए ही आया था। ओके, हम शत्रु के हाथों में ऐसे रिलीज कर देते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, कुछ सोचों को, कुछ भी हमारी ओर से हम खुद होके रिलीज कर देते हैं, और फिर बाद में शत्रु वही लेने के लिए आया होता है और वो लेके चला जाता है, और हमको फिर परमेश्वर बोलता है अब वही शत्रु तेरे को बंधुआई में करने वाला है, इसके लिए हम बंधुआई में चले जाते हैं। तो ये अगर सीक्रेट रास्ता आपको पता, आप बंधुआई में क्यों जाते हैं, तो आप हमेशा इस बात को लेके प्रार्थना करना है। मैंने ना जानते हुए या जानते हुए कुछ भी मुझ में से मैंने कुछ भी रिलीज़ किया है शत्रु के हाथों में, और वो शत्रु वही लेने के लिए आया होगा, और फिर वो लेके जाके उसने मुझे बंधुआई में डाल दिया। तो अब परमेश्वर मुझे तो उस बंधुआई में से छुड़ा कर ला, क्योंकि परमेश्वर जिम्मेदारी उठाता है छुड़ाने का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका छुटकारा आपने ले लेना है। कोई इवल स्पिरिट से नहीं डरना है, कोई प्रकार की विपत्ति से नहीं डरना है। ये सब जो आंधी तूफान रास्ते आते हैं वो कहीं ना कहीं हमने खुद होके उनके हाथों में कुछ दे दिया होता है, छोड़ दिया होता है। ओके, और हमको ये पता नहीं रहता है कि वो वही लेने के लिए आए थे, या वो वही काम के लिए आए थे, या वो वही कुछ रखने के लिए आए थे, या वो वही कुछ करने के लिए आए थे। हमको पता नहीं रहता है, या फिर हम जानते होंगे और फिर भी हमने उनके ऊपर डेयरिंग लगा दिया कि नहीं वो कुछ नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसा किया होगा। तो कहीं पर भी हो, बंधुआई का कारण होता है, आप फालतू में बंधुआई में नहीं जाते हैं। ओके, तो आपकी गलती होती है और शत्रु आपको बंधुआ कर लेता है। ठीक है, लेकिन छूटने का रास्ता मौजूद है माय फ्रेंड्स, डरना नहीं है। ठीक है, छूटने का रास्ता परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग लेना है। आमीन। शत्रु बंधुआई करने के चालाकियां कर लेता है, छूटने का रास्ता हमने उठाना है। आमीन, डरना नहीं है ऐसे विपत्तियों में। हम यशायाह की भविष्यवाणी पढ़ेंगे, 38 और 39 अध्याय पढ़ेंगे। पहले वचन से पढ़ेंगे। राजा हिजकिय्याह की बीमारी और चंगाई, 38 अध्याय पहले वचन से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वह यह है, मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, मैं यहाँ को जीवितों में की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा।
मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे तांत से काट लेगा, एक ही दिन में तो मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सिंह के समान मेरी और सब हड्डियों को तोड़ता है, एक ही दिन में तो मेरा अंत कर डालता है। मैं सूपा बेने या सारस के समान च्यूं च्यूं करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तो मेरा सहारा हो। देखो, इस प्रकार से हमने प्रार्थना करना है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम इंग्लिश बाइबल में से पढ़कर बाहर आ रहे थे, तब मैंने आपको बताया किस प्रकार से हम बंधुआई में जाते हैं। जब हम 39 अध्याय में जाएंगे तो वहाँ दोबारा हिंदी में आपको पढ़ने को मिलेगा कैसे बंधुआई में जाते हैं हम, है ना। तो हम फिर प्रार्थना कैसे करना है, इस प्रकार से करना है जैसे यहाँ पर इस बादशाह ने किया है, हिजकिय्याह बादशाह ने किया है। ओके, उसने कैसे प्रार्थना की, ये एरिया ऑफ लाइफ आप सीख लेना है कि जब उसको मुसीबत बता दी गई, अब ये तो भविष्यद्वक्ता ने उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे है तेरे बारे में, तो क्या फर्क पड़ता है। ओके, उसने जाकर बिलख बिलख कर यहोवा के सामने प्रार्थना करना शुरू किया। हम बंधुआई से क्यों डरे माय फ्रेंड्स। ओके, कौन से दुष्ट आत्मा से, कौन से विपत्ति से, कौन से जंजीरों से, कौन सी ताकतों से, किस प्रकार का भय रखे हम, क्योंकि हमको रास्ता है परमेश्वर के पास। बिलख बिलख कर रो लो और प्रार्थना करो, फर्क नहीं पड़ता है। अब इसकी तो जिंदगी खत्म होने की बात ली तो फिर ये तो निश्चित है कि बिलख बिलख कर रोएगा, क्योंकि इसके लिए अब दूसरा कोई बाकी नहीं रहा है रास्ता, सिवाय इसके कि परमेश्वर उसको छोड़ दे जीने के लिए, है ना। तो आप रोते हुए प्रार्थना किए हैं, तो इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि क्या है परमेश्वर, अब आपके अलावा तो कोई है नहीं बचाने के लिए। जब आप रहम करें तो कुछ बन सकती है बात। तो ये आप जब माइंड में आप भांप लेते हैं इस सच्चाई को, तब आपको रोना आ जाता है। हालेलुया, कि सच में खुदा अगर क्या है तो नहीं करेगा तो फिर ख़त्म करो बात को, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। जब इस एरिया ऑफ लाइफ को आप देखने लगते तो आपको रोना आ जाता है। ओके, क्योंकि वो ऐसा है कि परमेश्वर हाँ करे या ना करे, हमको तो देखना है कि परमेश्वर की ओर से जो होना है वो होने वाला है ना। तो रोना आ जाता है, हमारी व्याकुल अवस्था हो जाती है। हमने वैसे भी प्रार्थना कर लेनी है और हमारे जीवन के बारे में समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखना है। आमीन। तो यहाँ पे आपको देखा कैसे वो हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कह रहा है, देखो 14 वचन में, मैं सूपा बेने या सारस के समान च्यूं च्यूं करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तो मेरा सहारा हो। हालेलुया, कितना कितना एक अजीब तरह का दुख, वो अपने मन की हालत वो बता रहा है। ख़त्म हो गई है बात, सब कुछ के रास्ते बंद हो चुके हैं, अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं है अभी। ओके, 15 वचन देखिए क्या है। मैं क्या कहूँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूँगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित है और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। देखा, जब आपको पहले यूहन्ना की पत्री, आई थिंक पहले यूहन्ना है, ओके, उसमें पहले अध्याय का आई थिंक 7 वचन या 10 वचन, ऐसा कुछ वचन है जिसमें ऐसा है कि अगर तू अपने पापों को अगर तू कबूल करे, ऐसा लिखा है, अगर तू कबूल करे तो परमेश्वर धर्मी है तुझे माफ़ करने के लिए, और सिर्फ माफ़ ही नहीं करेगा बल्कि वह आपको सेंत में धर्मी भी बना देगा। तो यहाँ पे क्या कबूल करना है, ये कबूल करना है, तूने मेरे सब पाप
मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। जब तक आप इस बात को बोलेंगे नहीं, तब तक आपको हियाव नहीं आएगा परमेश्वर से कुछ मांगने का। परमेश्वर को ये कबूल करके बताना है कि तूने हमारे पाप निकाल दिए परमेश्वर, ओके, तूने हमारे पाप तेरे पीठ के पीछे फेंक दिए हैं, ओके, और इसके लिए तो मैं मांगने के लिए आया हूँ कि अब तुम मुझ पर रहम कर, ओके। अगर आप खुद को पापी देखते रहेंगे और परमेश्वर से मांगने की कोशिश करेंगे तो आप डाउट फील करेंगे, क्या पता होगा कि नहीं, क्या पता होगा कि नहीं। आपको बोला हियाव के साथ आ जाओ। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपना लहू बहाया है, अब हियाव के साथ आ जाओ परमेश्वर के दया के आसन के पास, क्योंकि अब वो तुम्हारे सुनने के लिए बैठा है। हालेलुया। तो ये कन्फेस करना है हमको कि हमारे पाप हट चुके हैं। जब तक आप अपने माइंड को ये तसल्ली नहीं देंगे, इसी को कहते हैं विश्राम स्थान, जब तक आपके माइंड को आप संघर्ष में से रोक नहीं देंगे, आप शांत नहीं हो जाएंगे कि परमेश्वर मेरी ओर से, आपका आत्मविश्वास जब तक नहीं आएगा तब तक फिर आपको डाउट रहेगा। आप प्रार्थना भी करेंगे लेकिन आपको फिर भी पीछे से एक आवाज़ आते रहेगी, क्या पता संभव होगा या नहीं, क्योंकि आप हियाव नहीं है आपके अंदर कि परमेश्वर वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके पास वजह है काम करने का। वो वजह प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। इसके लिए वो आपकी मानेगा, आपकी सुनेगा, आपको रास्ता देगा, आपको छुटकारा देगा, आपको जो मन चाहा वो सब कुछ करके देगा। लेकिन आपने कबूल करना है कि परमेश्वर तूने मेरे पाप माफ़ किए, मैं तसल्ली लेता हूँ और इसके लिए मैं हियाव के साथ तुझे मांग रहा हूँ, ओके। 18 वचन से आगे, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। देखो, अगर आप पाप के बारे में चिंता करते हुए अगर आप सोचेंगे मैंने तो ये पाप का माफ़ी मांगना है, मैंने तो वो पाप का माफ़ी मांगना है, मैंने तो ये गलती का माफ़ी मांगना है, मैंने वो माफ़ी मांगना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते और ना ही आप आनंद उठा सकते आत्मिक जीवन का, ओके। क्योंकि वो नेगेटिव बातें अधोलोक की बातें होती है और उसके अंदर आप कभी परमेश्वर को थैंक यू कहने का मौका आपको मिलेगा भी नहीं, ओके। न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है और पाप का एहसास रखते हुए, सिन कॉन्शियस रहते हुए आप परमेश्वर की प्रशंसा भी नहीं कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। आपको पाप को भूलना पड़ेगा। पाप आपके हिस्से की बात नहीं रही है अभी, ओके। आप पाप के हिस्से नहीं हो अभी। आपको धन्यवाद तभी आएगा जब आप अपने अंदर ये विश्वास ले लोगे आप पाप के भागीदारी नहीं है, आप पाप के हिस्से नहीं है, आप छुड़ा लिए गए हैं। अब आपके अंदर से धन्यवाद आएगा, अब आपके अंदर से प्रशंसा निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगा। आप सिन कॉन्शियस रहोगे और परमेश्वर की सहायता की आप अपेक्षा करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, हियाव नहीं रहेगा। तो परमेश्वर कहता है दुचित्ता मन ये ना सोचे कि उसको कुछ मिल जाएगा, और ना ही जिसके अंदर अविश्वास है वो सोचे कि उसको कुछ मिलेगा, ओके। तो आप दोनों जगह आप रॉन्ग पोजीशंस में खड़े हैं। आपको वैसे नहीं होना है, आपको विश्राम स्थान में आना है। आपको कहना है मेरे पाप माफ़ किए हैं तूने, ओके। यीशु का लहू है वो जिसने ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं तुझसे अब मांग सकूं। मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे खुदा, मेरे जीवन की परेशानियां दूर कर खुदा, मेरा जीवन बदल दे खुदा। अरे कोई भी रास्ता उसके पास है, जो मन चाहा परमेश्वर से मांगिए, रास्ता बनाना उसका काम है। हालेलुया। इतना प्यारा परमेश्वर है। और फिर आपको हियाव आता है, वाओ वाओ व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व, ओके। कैसे महान परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, तब निकलती है धन्यवाद। थैंक यू आबा, तू एकमात्र कहीं तो है ऐसा जो मैं अपनी बातें तुझे बता सकता हूँ और प्राप्त कर सकता हूँ। सो वंडरफुल गॉड यू आर। कैसा प्यारा परमेश्वर है, कितना प्यारा है तू। ये प्रकार से फिर हमारे अंदर से उसके लिए स्तुति बलिदान निकलता है। हालेलुया। नहीं तो आप ना धन्यवाद कर पाएंगे और ना स्तुति कर पाएंगे अगर आप सिन कॉन्शियस रहोगे, अगर पाप में ही आपका मन अटका पड़ा रहेगा। मैं तो पापी हूँ, मैं तो पाप किया, मैंने तो गलती की, मुझे पता नहीं क्या होगा, क्या करेगा, परमेश्वर सुनेगा या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना है।
ना ही धन्यवाद आएगा आपके अंदर से, ना ही स्तुति आएगा, ना ही आपके प्रार्थना के जवाब आएंगे। हालेलुया। एक छोटा बचपना होता है, वहाँ तक आपको परमेश्वर दे देगा, आपको नज़रअंदाज कर देगा ये सारी बातों को जो आप बचपना के जैसे करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, पाप का ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके, ये सारा चीज़ें फिर परमेश्वर बचपना देखता है, वो ठीक है कर देता है। लेकिन जब आप परिपक्व होने की सोचते हैं तो आपको ये रास्ते बदलना पड़ेगा। आपको पाप का ध्यान हटा देना पड़ेगा अपने दिमाग से और कबूल करना पड़ेगा, परमेश्वर तूने मेरे पाप माफ़ किए हैं। यही तो कारण है कि आज मेरी संकट है, मेरी विपत्ति है। मैं जानता हूँ कहीं तो मैंने कुछ तो गड़बड़ी कर रखी है, गलती कर रखी है, और बंधुआ मुझे बंधुआई करके लेकर गया है। ओके, बंधुआई करने वाला जो दुष्ट है वो मुझे बंधुआई कर ले गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अब इसके लिए मैं तेरे पास बैठ गया हूँ, कर कुछ तो कर खुदा, छुड़ा मुझे इस पे से। सो वेरी सिंपल प्रेयर्स। ओके, कितना साधारण आपका दोस्ती है परमेश्वर के साथ, आपको सब कुछ दे देता है। आपकी सहभागिता, आपका प्यार जताना उसको, आप उसके साथ मज़े करना, आनंद लेना, ये सब कुछ तो परमेश्वर चाहता है आपके साथ रहने के लिए। और वही आप नहीं देंगे, आप सिर्फ बोलेंगे ओ मैंने ये गलती किया, मैंने वो गलती किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने। नहीं करेगा वो, नहीं सुनेगा। आपको वो रोते बैठते पीटते रहना पड़ेगा, आपको रास्ते चेंज नहीं हो पाएंगे ऐसे करेंगे तो। ठीक है, सिन कॉन्शियस में से बाहर आना है हमको। 19 वचन देखिए क्या कहता है। जीवित, हाँ जीवित है, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूँ। देखा, अगर आप सिन कॉन्शियस रहेंगे तो आप जीवित नहीं है। ओके, आप पाप पे ध्यान लगाए रखेंगे, पाप 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 पाप। ओके, एवरीवेयर। हाँ, पाप कभी पता चला? पाप व्यवस्था ही के कारण तो पता चला है ना। तो अगर वो व्यवस्था नहीं आती तो आपको कहाँ पता चलता पाप क्या है? बराबर है ना। तो व्यवस्था ही के कारण पाप पता चला है, और इसके लिए हम नाप तोल कर जीते हैं। ये पाप है, ये पाप नहीं है, ये पाप है, वो पाप नहीं है, ये पाप है, वो पाप नहीं है। हम उसको देख के चलेंगे तो वो मृत्यु के वश की जीवन जी रहे हैं। उसके अंदर परमेश्वर धन्यवाद नहीं उसका होता है, और ना ही परमेश्वर की स्तुति निकलती है, बल्कि उसका डर बना रहता है। ओह माय गॉड, मैंने तो पाप कर दिया अब फटका खाएगा मैं ओके, ओह माय गॉड, अब तो मैंने पाप कर लिया। ओह माय गॉड, अब तो परमेश्वर तो खत्म, मेरी तो हालत खराब कर देगा। ओके, वो परमेश्वर नहीं रहा अब हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए जो परमेश्वर है वो यीशु के अंदर हम आ चुके लोग हैं, और हमारा आबा पिता है वो। आप नहीं समझ सकते हैं आबा पिता क्या है। हालेलुया, आपको समझने की ज़रूरत है। आपके मम्मी पापा आपको कुछ नहीं दे सकते, आपके भाई बहन नहीं दे सकते, आपके दोस्त सहेलियाँ नहीं दे सकते, आपके पैसे, आपके प्रॉपर्टीज, आपका दुनिया का कोई हिस्सा कुछ नहीं दे सकता है जो आपको आबा पिता दे सकता है। हालेलुया, इतना मजबूत डोर आपकी बंध गई है परमेश्वर के साथ। फालतू में क्यों आप निराश रहते हैं? फालतू में क्यों आप परेशानियों के समय डगमगा जाते हैं? फालतू में क्यों आप हैरानी में, परेशानी में पाप 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 करते हुए भागते फिरते हैं? ओके, शांत हो जाओ और स्थिर हो जाओ और देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो कहता है समस्याओं के बीच में शांत हो जाओ, चुप रहो और देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आमीन। तब निकलेगी तुम्हारे अंदर से धन्यवाद, तब निकलेगा तुम्हारे अंदर से प्रशंसा, क्योंकि आप शांत हो गए। आपने अपने आप को दोष देना बंद किया, अपने आप की काबिलियत देखना बंद कर दिया, अपने आप की तरफ अपनी हैसियत देखना बंद कर दिया। सब कुछ आपने देखना है वो परमेश्वर और यीशु मसीह के लहू के अंदर से आप हो, ये देखना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने गले लगाया है सिर्फ एक कारण से, यीशु मसीह का लहू के अंदर से आप उसके पास आए हो। वो आपकी सुनता है, बड़े प्यार से सुनता है। हालेलुया। बहुत प्यारा परमेश्वर है आपके साथ। आपने हर एक छोटी छोटी बातों को उसके साथ शेयर करना है।
मैं तो एक सिंपल सा, मेरा फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट मुझे बहुत 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 पसंद है। अगर मुझे किसी ने कहा खाना खाया क्या, तो मेरे घर में डेयरी मिल्क चॉकलेट रहता था और मैं बोलती थी हाँ मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट खाया है। ओके, तो खाने की जगह को मैंने उसी को ले लिया, इतना ज़्यादा पसंद था मुझे, वो पसंद है अभी भी। ओके, तो वो भी अगर मुझे कभी चाहिए, चिप्स, पोटैटो चिप्स मुझे बहुत पसंद है, अगर वो भी मुझे चाहिए, अगर कुछ भी मुझे चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। ओके, लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर को बोलना पड़ता है आई वॉन्ट दिस, मुझे चाहिए, समय निकाल मेरे लिए कि मेरा मन उसको खरीद सके और मैं उसे खा सकूं। ओके कुछ भी बातें रहे, कुछ भी बातें रहे, तो हमने मन खोल कर परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर वो देता है और हमने उसको लेना है। हालेलुया। और आनंद करना है। जब हम आनंद नहीं करेंगे जो परमेश्वर हमको देता है और हम उसके कॉन्शियस में नहीं जिएंगे कि वो हमारा आबा पिता है, धन्यवाद नहीं निकलेगा परमेश्वर का, प्रशंसा भी नहीं निकलेगी। फायदा क्या है फिर? आप तो मृत्यु के जीवन में जीते हो, फिर अधोलोक के जीवन में जी रहे हो जिसके अंदर पाप की व्यवस्था रहती है। ओके, तो ये तरह से हमने नहीं जीना है, हमने परिपक्व होना है, तो हमने पाप के कॉन्शियस को हटा देना है दिमाग में से। ठीक है, कंपलसरी है, ज़बरदस्ती है हमारे ऊपर ये। ठीक है, हमने उस कॉन्शियसनेस को छोड़ देना है। आगे पढ़ेंगे। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता, तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता हूँ। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। तो यहोवा हमारा उद्धार है। देखा, छुटकारा है। उसका छुटकारा कहाँ था? क्या उसको मिल गया जिंदगी? नहीं, उसने अभी तो सिर्फ प्रार्थना ही कर रखी है। तो हम भी क्या करते हैं? प्रार्थना ही कर लेते हैं, लेकिन तरीका हमारा अलग रहता है। उसने बिलखते बिलखते प्रार्थना की, उसने अपने दुख को बयान करते करते प्रार्थना की, उसने अपने प्राण की व्याकुल अवस्थाओं को बयान करके प्रार्थना की, और फिर उसने ये भी कहा तूने तो मेरे पाप भुला दिए हैं। ओके, अब तो तू मुझे सुनना ही सुनना है। और फिर धन्यवाद निकलने लगा, प्रशंसा निकलने लगी उसके अंदर से, और वो जीवित चीज है ये बात साबित हुआ उसके अंदर से, क्योंकि उसके अंदर से धन्यवाद निकलने लगा। वो कहता है कि जीवित ही धन्यवाद कर सकता है, मुर्दे नहीं करते हैं। हालेलुया। तो फिर अब आ जाता है 20 वचन कि हम अब परमेश्वर को ये कह रहे हैं कि अब तो बस करो भाई, छुड़ाना तो आप ही से होने वाला है, छुड़ा लीजिए हमको। ओके, परमेश्वर हमको छुड़ाइए। ओके, और वो तो बात आप ही से होनी है। आप ही हमको बंधुआई के हाथों से निकालेंगे, आप ही जंजीरों में से छुड़ाएंगे, आप ही हमको रास्ते देंगे, आप ही हमारे सारे मसलों को सुलझाएंगे। आप ही है परमेश्वर, और कौन है कि हम किसी के पास देखें। ओके, ये है परमेश्वर के साथ का संबंध। इसे कहते हैं परमेश्वर के साथ का पर्सनल रिलेशनशिप। ओके, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। अगर हम परिपक्व होना चाहते, अगर हम उन्नति करना चाहते, ये परिपक्वता हमारे अंदर होनी चाहिए। ओके, आप उसके दोस्त बन जाना है, आप उसके पुत्र बन जाना है, पुत्री बन जाना है, आप उसके सेवक बन जाना है, आप उसका सब कुछ हो जाना है, सब कुछ वो आपके लिए हो जाना है। हालेलुया। आपको दुनिया में कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, आपका हर अकेला समय और भरपूरी का समय, सब कुछ के बीच में केवल और केवल परमेश्वर आपका केंद्र होना चाहिए। हालेलुया। देखिए आगे पढ़ेंगे हम 20 वचन। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। अब देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? वो कर रहा है। वो मतलब वो वाचा बांध रहा है। क्या बोल रहा है वो? अब उसको जिंदगी चाहिए, अभी तक मिली नहीं है, परमेश्वर से कोई जवाब नहीं आया है, और फिर भी वो क्या कह रहा है? अपने मुंह के शब्द वो अभी पालन करने वाला है। ओके, वो कह रहा है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ? मेरे भविष्य में जीने वाला हूँ, और मेरे भविष्य में मैं तार वाले बाजों के साथ परमेश्वर के रचे हुए गीतों को गाने वाला हूँ।
उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है वो बात नहीं बोल रहा है वो। ओके, वो कह रहा है कि अब मेरे को परमेश्वर बचाने जा रहा है और मैं बचता हूँ, और फिर बचने के बाद का मेरा ये सब प्रोग्राम मैंने रच के रखा है कि मैं ये पूरा करने के लिए शुरुआत करूँगा। हालेलुया। देखिए 21 वचन क्या कहता है। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांध दी जाए तब वह बचेगा। आ गया, कोई भी इलाज परमेश्वर कर देता है। ठीक है। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा। बेबीलोन के दूतों का आगमन 39 अध्याय हम पहले वचन से पढ़ेंगे। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। अब देखिए, जब आप मुश्किल समय में होते हैं ना, तो शत्रु किस प्रकार से आपके पास आ जाता है देखो। ठीक है। हाँ, जब मैं भी परेशान रहती हूँ, मेरे पास भी बहुत कुछ होता है। शैतान ने सारे गड़बड़ियाँ मचा कर रखी होती है, और शैतानी जगत के लोगों को पता होता है हमने तो बहुत कुछ कर लिया है, इसके ऊपर बहुत कुछ चाल चला ली है, बहुत अच्छे से इसे पछाड़ के रख दिया है। फिर उन्हीं के लोग आ जाते हैं मेरे घर में मुलाकात करने के लिए, ताकि मेरे मुँह से वो सब कुछ सुन सके जो कुछ भी वो सुनना चाहते हैं, या मेरे घर के अंदर से कुछ चीज़ें लेकर जा सके जो उनको चाहिए। ओके, और मैं उनको पहचान नहीं पाती हूँ। ठीक है, और फिर मैं बंधुआई में चली जाती हूँ। ओके, और फिर चीखे लगाती हूँ परमेश्वर को, लॉर्ड छुड़ा मुझे, लॉर्ड छुड़ा मुझे। ओके, ये हालत है हमारी। ठीक है। 39 अध्याय हम पहले वचन से पढ़ते थे। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। देखा कितना प्यारा रास्ता पकड़ते हैं शत्रु, है ना। क्या करते हैं, पत्री भेजी और भेंट भेजी, और फिर अब निकले हैं हिजकिय्याह की हालत खराब करने के रास्ते चलने के लिए। देखो क्या है, वो तो बेचारा, मतलब हिजकिय्याह तो बचा लिया गया था, लेकिन फिर दूसरा शत्रु ने वार तैयार किया। ठीक है। जब आप एक समस्या से बाहर निकलते हैं, आपकी नादान अवस्था आपको दूसरी समस्या में धकेल देती है। शत्रु देखता है, ठीक है, ये रास्ता बच गया क्या, ये कोई बात नहीं, अब दूसरा रास्ता चलाना ज़रूरी है। ओके, तो आप नादान हो, यही कारण से आप दूसरे रास्ते में भी शत्रु आपको दोबारा आके खींच लेता है। ठीक है। देखो क्या है, ये इनोसेंट माइंड, सिंपल माइंड के लोग फंसते हैं शैतानी जगत के लोगों के हाथों में। ठीक है, क्योंकि वो नहीं पहचान पाते क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए हमको प्रार्थना करना एकमात्र रास्ता है जो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, और हम ऐसे गंदे लोगों के हाथों से बच निकलते हैं। ठीक है। 2 वचन से आगे पढ़ेंगे। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हालेलुया। ये मेरे साथ हमेशा होता है। ओके, जब भी मैं एक मुश्किल से बाहर सुरक्षित निकल आती हूँ, उसके बाद मेरे घर में एक चक्कर कोई ना कोई लगाता है, और मैं अपने सारे बहुमूल्य अवस्थाओं को उनके सामने रिलीज कर देती हूँ, और वही उठा के वो मुझे बंधुआई में डाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे साथ हमेशा होता है, हमेशा ये मूर्खता मेरे साथ होती रही है। मैं इसके अंदर सुधार नहीं कर पाई अपने आप को। ठीक है, इसके लिए मैं बारंबार गिरते रहती हूँ ऐसे मुश्किलों में जो मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मैं वो मुश्किलों में घूमते रहती हूँ। ओके, और ये साइकिल रुकता ही नहीं है, वो दोबारा वही लोग आ जाते हैं, वही लोग घूम कर सिर्फ बदल कर आ जाते हैं, दोबारा मुझे बंधुआई करके लेकर जाते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से होता रहता है, ये साइकिल है। और इसके लिए फिर मेरी प्रार्थनाओं में आप लोग छुटकारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये साइकिल में से मुझे भी छूटना पड़ता है। और जब मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ तो मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के बीच में भी कोई ना कोई ऐसा होगा, तो मैं अपलोड कर देती हूँ प्रार्थनाओं को, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी छुटकारे में आ जाए। ओके, तो इसी प्रकार से हमारा फेलोशिप है परमेश्वर के साथ। हमको कोई समस्या, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कुछ भी बातों की चिंता करते हुए नहीं चलना है। हम परमेश्वर की भेड़ है, और भेड़ को चरवाहे के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। ओके, तो हमारा अच्छा चरवाहा हमारी अच्छी देखभाल करता है। इसके लिए हमको चिंता नहीं करना है कोई भी बात का। कोई बात नहीं है, निकलेंगे हम, पार निकलना है और निकलते जाएंगे। आमीन। रास्ता सीख लो किस प्रकार से निकलते हैं, प्रार्थना करते हुए। प्रार्थना के तरीके कोई भी उठा लो, कोई परवाह नहीं, लेकिन पाप को ध्यान में रखते हुए नहीं। पाप से माफी प्राप्त किया है, इस बात को आप ज्यादा जोर देते हुए परमेश्वर के सम्मुख आना है। वो विश्राम स्थान है, वहां से आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर कबूल करता है। हालेलुया। रास्ते निकलते हैं मेरे फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिए इस बात को। हम आगे पढ़ेंगे, 2 वचन और एक बार पढ़ेंगे। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? मुझे भी लोग ऐसे ही पूछते हैं। ओके, क्यों आए थे वो, क्या काम था उनका? ओके, फिर मैं भी उनको वही बताती हूँ जैसे हिजकिय्याह ने कहा वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। हालेलुया। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। हालेलुया। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। ये था दानिय्येल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को उठा ले गए थे। उनके कारण बंधुआई में जाने का ये हिजकिय्याह की मूर्खता थी। ओके, हम खुद मूर्खता करते, हमारे पीढ़ियों को उसकी भुगतनी पड़ती है। ओके, तो हम आज जॉबलेस है तो हमारे पीढ़ियों में ऐसी किसी ने मूर्खता कर रखी है कि हम अभी भी मारे मारे भटक रहे हैं। ठीक है, अगर हम गरीब है तो मारे मारे भटक रहे क्योंकि हमारे पीढ़ियों में ऐसे कुछ कर रखा है जो हमें इस अवस्था में ला कर रख दिया है। आज हम जो इस पीढ़ी में जी रहे, जो भी हमारे नेगेटिव है वो हमारे पीढ़ियों में से किसी ना किसी ने महारथी होकर कुछ ना कुछ काम कर रखा है ऐसा, जो आज हम ये भुगत रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से होता है। तो इसके लिए हम आज हमारे पीढ़ी में है तो अपने रास्ते सीधे कर लो ताकि आने वाले पीढ़ी में वो सब कुछ ना रहे जो हमने अभी तक अपने पीढ़ी में आज देख रखे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे आगे के समय को हम साफ करने का हमारे पास मौका है, लेकिन बीत गए पीढ़ियों का तो अब छोड़ दीजिए, आने वाले पीढ़ियों को आप सीधे रास्ते दे सकते हैं। ये बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो दानिय्येल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के बारे में आपको पता चला कैसे क्या वो लोग वहाँ पर चले गए, बबीलोन के अंदर उनको कैसे क्या बंधुआई करके राजभवन में रखा गया था और उनको खोजे बनाए गए थे। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दानिय्येल ये लोगों का जो प्राइवेट पार्ट्स था वो निकाल दिया गया था। ये कहाँ से हमको पता चला, कहाँ से? ये वचन में से पता चला। ओके, और इसकी वजह से हम ये सारी बातें इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑलरेडी बोल दिया गया था। तो परमेश्वर ने कहा ये पहले से बोल दिया गया, तुम्हारी मैरिज टूटेगी। ओके, ये
पहले से बोल दिया है तुम अन्य जाति के कोई लड़के से शादी कर लोगे, ये पहले से बोल दिया गया है। तुम्हारे घर में संकट ऐसे ऐसे प्रकार से होने वाले हैं, ये पहले से बोल गया है। तुम्हारा पति पत्नी का झगड़ा होते रहने वाला है, ये पहले से बोल दिया गया है। तुम्हारे ऊपर जादू टोना होते जाने वाला है, पहले से बोल दिया गया बात है। हमारे नुकसान होने वाले, हमारे कोई ना कोई फाइनेंस फेल होने वाला है, हम कुछ ना कुछ जगह में किसी ना किसी ऐसे प्रकार से फंसने वाले हैं, हमारे कोई इस प्रकार के दुश्मन होने वाले हैं, हमारे कोई ऐसे विरोध करने वाले हैं। ये पहले से हो चुका है, बोल दिया गया बात है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मूर्खता कर रखी है किसी ने। हालेलुया। हमारे पीछे से आने वाले समयों में किसी ने कुछ मूर्खता कर रखी है, इसकी वजह से हम ये भुगत रहे हैं। हालेलुया। तो इसके लिए आप जब ये कमेंट्स लिखते हैं ना कि मैं कर्ज में फंस गई हूँ, तो कर्ज में फंसने की बात नहीं है। कर्ज में फंसने का ऑलरेडी बंदोबस्त और कहा गया था आपके ऊपर, ठीक है। और क्यों किया गया था ऐसा? क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई पीछे से आने वाले लोगों ने कुछ ना कुछ आपकी पीढ़ियों में ऐसा कर रखा था कि आप उस कर्ज के शिकार बनने वाले हैं, ठीक है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो आप स्पीड ब्रेकर आए तो आप क्या करते हैं? एक अचानक आपको दिखाई दिया स्पीड ब्रेकर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो है ऐसे आगे, तो आप स्क्रीच लगेगा इतना ज़्यादा ज़बरदस्त, आप हार्ड ब्रेक लगा देते हैं और पूरी तरह से गाड़ी की हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे आपको हैंडल करना पड़ता है और गाड़ी भी आपको ठीक रखनी पड़ती है, खुद भी ठीक रहना पड़ता है और पार भी होकर जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी मंजिल वही रुकनी नहीं है, आपको उसके पार जाना है, आपको अपने मंजिल पर पहुंचना है, ठीक है। बाधाएं आ गई बीच में, लेकिन बाधाएं आने का मतलब क्या बनता है कि आपके पीछे से कोई समय में किसी लोगों ने आपके लिए कुछ बो कर रखा और वो अभी आपको आड़े आ गया। बस पार हो जाओ उससे, ठीक है। पार होने के रास्ते कैसे निकलते हैं? जैसे हिचकिया ने प्रार्थना की, ठीक है। और जिस प्रकार से हमको पार होना है, उस पार होने के समय में जो बंधुआई के अंदर है, उसके ऊपर दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो की तरह जीवन जिए। ओके, उन्होंने बंधुआई में होने के बावजूद परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं की। हालेलुया। बहाने नहीं लगाए कि हम तो बंधुआई में हैं, हमारे ऊपर तो ये बॉस है, हमारे ऊपर तो ये अधिकारी है, हमारे लिए तो कोई फ्रीडम नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अब यही तो इनके राज्य चलने वाले। नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं। ओके, परमेश्वर को परमेश्वर रहने दिया और बंधुआई में भी वो परमेश्वर ही के बने रहे। हालेलुया। वो कॉम्प्रोमाइज में नहीं गए, परमेश्वर की जगह छोड़कर वो शत्रु के बंधुआई के रीतियों के अंदर वो अपने आप को शामिल नहीं किए। तो कोई ऐसी बात मत बताइए कि आपकी एज बढ़ रही है इसके लिए अन्य जातियों में जाकर शादी कर ली, ये बात मत बताइए किसी को, हंसने वाली बात है। दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो आपको आपके लिए शर्म से झुकाने के लिए रखे गए हैं। ओके, जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपको शर्म से झुकाने वाले ये नाम है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आड़े के खड़े हो सकते हैं तो फिर आप कौन से मिट्टी के लोग हैं। अगर मसीह में है तो आपकी मिट्टी भी वही है जो दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो में रखी थी। आमेन। तो इसकी वजह से हम उन सारी बातों को नहीं मानते हैं। जब आप कहते हैं कि ओ मेरा तो ये हो रहा है, मेरा तो वो हो रहा है और इसके लिए मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया, नहीं। आपको दानियेल के बारे में, आपको दानियेल की पुस्तक पढ़ के समझ लेना है किस प्रकार से दानियेल उस बंधुआई के अंदर भी परमेश्वर के साथ एक मन होकर बना रहा, डरा नहीं। मरे तो मरे, जिए तो जिए, आई डोंट केयर, मेरा परमेश्वर और मैं अलग नहीं है। आमेन। ये आपके अंदर से, ये आपकी मसीहियत है और इसी को मसीही कहा जाता है। ओके, और परमेश्वर दानियेल को चीज़ें बताता था, इसकी वजह से वो उसको पार कर लेता था। ठीक है, तो हम भी जब परमेश्वर के संगति में है तो परमेश्वर हमको अपनी मुसीबतों के रास्ते दिखाएगा, कैसे हमको पार करना है। तो हमको उस मुसीबत के बीच में जाकर कोई ऐसा रास्ता नहीं उठा लेना है जो परमेश्वर के विरोध जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते तो परमेश्वर देता है, रास्ते तो हमको परमेश्वर निकाल कर देता है। फिर क्या ज़रूरत है हमको जल्दबाजी करने की। बने रहिए बंधुआई में। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, दानियेल ने ऐसे नहीं किया, जल्दबाजी नहीं दिखाई कि बस हम इसमें से कैसे भी हाथापाई करके झटके लगाकर हटा लेंगे अपने आप को। ऐसे नहीं किया उन्होंने।
ओके, कोई खून चोरी डाकू नहीं डाला उन्होंने, मारा नहीं किसी को, कूटा नहीं किसी को, एकदम आराम से परमेश्वर के ऊपर भरोसा टेक लेते हुए, ओके, और धीरे 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 बंधुआई का समय पूरा होने तक वो बने रहे। हालेलुया। इसके लिए हम कहते हैं मसीही जीवन में ये वचन को आप स्वीकारो। परमेश्वर ने हमको, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको वो शांति देता हूँ जो कभी भी कोई जगत के अंदर तुमको कोई नहीं दे सकता, ऐसी शांति। और वो कौन सी है? स्थिर रहे, शांत रहे और देख मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ये अनुभव ही मसीहियत है। शांत चलना है और देखना है, हर बंधुआई से पार होते समय शांत रहते हुए, परमेश्वर के साथ मगन रहते हुए, प्रफुल्लित मन से, शुद्ध मन से, अच्छे से परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, बलिदान देते हुए, जीवित परमेश्वर के हम जीवन जी रहे ये जानते हुए, हमारे पाप अपराध माफ हो चुके ये जानते हुए, हमको हियाव के साथ दया मिलने वाला, दया के आसन के पास हम जा सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हम शेयर कर सकते हैं, परमेश्वर से रास्ते ले सकते हैं, परमेश्वर हमारे सुनता है, हम पर उसका क्रोध नहीं है, हमारे अंदर शांति है। ये विश्राम स्थान में से आपको परिस्थितियों को पार करना आना चाहिए। स्थिर रहे और जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन। तो रास्ते हम नहीं बनाते हैं, परमेश्वर बना कर देता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे 5 वचन से आगे। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। हालेलुया। हिजकिय्याह थोड़ा सा सेल्फिश बन गया उसने कहा ओके ठीक है, चलो मैं वो मेरे वंश के अंदर होने वाला है ना, ठीक है कोई बात नहीं है, चलो मेरे दिन तो अच्छे रहने वाले हैं। ओके, ऐसे आप सेल्फिश मत बनिए। आपके दिन अच्छे रहे इसका मतलब आने वाले पीढ़ियों की आप चिंता ना करें, ऐसे आप स्वार्थी ना बने। ठीक है, अपनी पीढ़ियों को भी आप इस प्रार्थना में शामिल किया करो जो आपके रोज के जीवन की प्रार्थनाएं होती है, ताकि यही प्रार्थनाएं आपके पीढ़ियों के रास्ते सीधे रखेंगे और आपने बोया हुआ फसल आपके पीढ़ियों को खाने को मिलेगा। हालेलुया। इसके लिए आप ध्यान रखिए, हम प्रार्थना के वक्त में अकेले नहीं, हमारे पीढ़ियों तक को हम याद करके प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम अब 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान अपने व्यक्तिगत समय में, अकेले समय में पढ़ेंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ रहे होते हैं तो अभी आपको समझ में आया कि परमेश्वर हमारी सुनता है। ओके, तो हमारी सेवा को वो कबूल करता है। कारण क्या है? यीशु मसीह का लहू बहाया गया। हालेलुया। और उसने क्या किया है? पवित्र आत्मा दिया है हमको, ताकि हम हमारे सेवा का आनंद उठा सके। ठीक है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के उन वचनों के भेद समझकर 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर के बड़े अच्छे और प्यारे ऐसे अनुभव के साथ हम परमेश्वर के काम और राज्य के काम कर पाएंगे। वो हमें सौंपेगा कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारियां कि हम उसे कर पाएंगे। हालेलुया। और हम पवित्र आत्मा हमें दिया गया, अनुग्रह का आत्मा दिया गया, हमने उस अनुग्रह के आत्मा का निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमें फिट एंड फिक्स बनाया इसके लिए। अब फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू ही हमारा एकमात्र परमेश्वर है, तेरे अलावा हमारे लिए और कोई परमेश्वर नहीं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू बढ़े और हम घटे, तेरे बिना परमेश्वर हमारा जीवन अधूरा है। हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा इन वचनों में, और हमने तेरा परमेश्वर पिता डिवाइन ऑर्डरलीनेस आने दे। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।